Hello students, my name is Swarndeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Care. And today's our class is about CFT crystal field theory. In this class, I include some important questions like CFSE, CFT and about pairing energy. So without wasting time, let us start. Crystal field theory. Important questions. First, who proposed CFT? So there is two names, there is two scientists, that is Bethe and Villach. The main role is played by Bethe. So our answer is Bethe, and if there is given option like Bethe and Villach both, then our answer is Bethe and Villach. But even only there is the two different options are given, that is Bethe and Villach, then our accurate answer is Bethe. So our first question, who proposed CFT? That is Bethe and Villach. Now the next question. Question second, which type of ligands are called weak filled and strong filled ligands? Which type of ligands are called weak filled and strong filled ligand? We already taught this about this in our previous class VBT, because there is also weak filled and strong filled ligands plays their important role. So the weak filled ligand and strong filled ligands, the ligands which cause only a small degree of crystal splitting are called weak filled, whereas the ligands which causes a large splitting, that means कि वो ligands जो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग बहुत कम करते हैं, उन्हें तो कहते हैं वीक फील्ड, और जिनकी वजह से स्प्लिटिंग क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। यहाँ पे स्प्लिटिंग का मीन्स है कि इस चीज से कि जो स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि वो जो इस तरह से एक लिगेंड है, अगर वो लिगेंड टूट के ऐसे दो हिस्सों में टूटता है। एक्चुअली CFT इज बेस्ड अपॉन the degenerated orbitals split into two parts, that is higher energy part and lower energy part. यानी कि जो अपना ligand है, जो d orbitals है, same energy के, the same energy d orbitals are called degenerated orbitals. Sometimes it also asks what is called degenerated orbitals. Degenerated orbitals are the orbitals which causes same energy. So here d orbitals have same energy orbitals. Due to splitting, due to ligands, these orbitals break down into two parts. One is higher energy part and second one is lower energy part. The ligands which cause the higher energy, splitting energy क्या हो, जिसकी ज्यादा हो, यानी कि एक ने तो इतना से ही तोड़ा और एक ने इतना तोड़ दिया, तो जो इतना सा तोड़ पाया वो क्या हो गया, वीक, और जिसने ज्यादा ब्रेक कर दिया वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने सेम यही बात लिखी है कि जो लिगेंड्स क्या करते हैं, ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, जिनकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाए वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जिनकी वजह से स्प्लिटिंग टूटना, अगर स्प्लिटिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, जिनकी वजह से वो क्या है, वीक फील्ड। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से वो आपसे पूछ सकते हैं कि वीक फील्ड और लिगेंड फील्ड, ऐसे कुछ लिगेंड्स दे देंगे एंड दे विल आस्क यू अरेंज दीज इन अकॉर्डिंग टू देयर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ओके, तो देखो हमने क्या करना है कि मैंने प्रीवियस क्लास में आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस कि वीक फील्ड के अंदर हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे halogens and oxygen elements. The compound or ligand in which oxygen is a donor atom, that is included in a weak filled ligand. सिर्फ उसी को जिसके अंदर ऑक्सीजन है और वो खुद अपनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तब हम उसको किसमें इंक्लूड करेंगे, अपने वीक फील्ड के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो हियर ऑक्सीजन, okay, here oxygen is donor atom because hydrogen have only one electron and it's already give it to oxygen, so hydrogen have no electron to give, so that's why oxygen is donor atom in this case. So oxygen, and here is oxalato. In oxalato there is the structure of oxalato is like this, so here also our donor, oh sorry, here is also the donor atom is oxygen, you can see here. Okay, so that is also weak filled. In cyanide there is only carbon and nitrogen, here our donor atom is nitrogen which is a strong filled ligand.
So next one is also nitrogen. The third one, water. Here the lone pair obtained by oxygen. Okay, जो lone pair है वो किसके पास है? Oxygen के पास. So here also our donor atom is oxygen, fluorine, chlorine, halogens and ethylene diamine. Ethylene diamine के अंदर donor atom क्या होता है? Nitrogen. कार्बोनिल, कार्बोनिल के अंदर अपना डोनर एटम कार्बन होता है, ये ध्यान रखना. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीलेटो के अंदर भी कार्बन है बट डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो कार्बोनिल के अंदर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन को डोनर एटम मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अपना डोनर एटम नहीं है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है? कार्बन है. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो इंक्लूड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ग्लाइसिनेटो. हियर आल्सो नाइट्रोजन इज डोनर एटम. तो अपने पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन हो गया? ऑक्सीजन इसमें है और इसमें है और हैलोजेंस होंगे. ओके, तो अपने पास में ये तो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्सी, ऑक्सीलेटो एंड H2O एंड फ्लोरीन एंड लास्ट वन इज क्लोरीन. नेक्स्ट अपन लिखेंगे वीक फील्ड लिगैंड. द रिमेनिंग ऑल अदर्स आर वीक फील्ड लिगैंड्स लाइक साइनाइड, अमोनिया, ethylene diamine, carbon monoxide and glycineto. These are weak field ligand. इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हाट इज CFSE? CFSE, crystal field splitting energy. The full form is crystal field splitting energy and we represent it by delta. That is a triangle. इस ट्राइंगल से है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं. तो क्या बोलेंगे? डेल्टा. CFSE is crystal field splitting energy. Okay. Next, when okay, होती क्या है CFSE? CFSE होता है कि जब स्प्लिटिंग हुई, मैंने आपको पहले भी अभी है ना आपको पढ़ाया था कि क्या होता है स्प्लिटिंग का मतलब है ब्रेक डाउन होना, यानी कि जैसे ही लिगैंड, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई मान लो कि ये मेटल है, इसके पास में यहाँ से लिगैंड आ रहा है, तो देखो लिगैंड आ रहा है तो इसके बाहर वाले पहले इलेक्ट्रॉन, इधर से इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, इनके बिटवीन क्या होगा? रिपल्शन होगा. इस रिपल्शन की वजह से इसकी जो डी ऑर्बिटल है ना वो दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. और हमें ये पता है कि डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना. 5 डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. और इसके अंदर जो अपने 2 तो ऐसे होते हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं और 3 ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं. यानी कि अगर हम बात करें तो एक तो ये वाला, ओके, और एक ये और ये वाला, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो एक ही ऑर्बिटल हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस का हो गया, है ना. तो अपने पास में टोटल कितने ऑर्बिटल है? 2. डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक ही ऑर्बिटल माना है हमने. ठीक है. उसके बाद में देखो जेड वाला है जो, वो एक ऑर्बिटल हो गया, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 2. एक तो एक्स वाई वाला और एक जेड वाला. और बाकी जो 3 ऑर्बिटल है वो कौन से है? इन बिटवीन द एक्सिस. एक तो एक्स वाई के बीच, एक एक्स जेड के बीच और एक जेड और वाई के बीच. ये हो गया वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई, 3 हो गए. तो अपने पास में 3 ये ऑर्बिटल होगी जो एक्सिस के बिटवीन में है और 2 ऐसे होंगे जो एक्सिस पर है. तो अब देखिए जो एक्सिस पे है ना, अगर आने वाला लिगैंड एक्सिस से आया है तो उसके बिटवीन रिपल्शन हो गया. रिपल्शन होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, है ना. रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा. तो जो एक्सिस से आ रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ गई और जो इन बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी. स्प्लिट हो गया इस तरह से 2 हिस्सों में. वैसे ही अगर इन बिटवीन द एक्सिस से आ रहा था, लिगैंड कहां से आ रहा था? इन बिटवीन द एक्सिस. इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो 3 थे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और एक्सिस वालों की क्या होगी? कम होगी. समझ में आई बात? तो इस तरह से जो CFSE है वो एनर्जी है जो स्प्लिट होती है ना, तो उसके बिटवीन जो एनर्जी का गैप बन गया है, तो एनर्जी गैप ही ना, एक का ज्यादा है और एक का कम है. एक तरह से अपन CFSE को कह सकते हैं एनर्जी गैप. लेकिन हमें इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा जिस तरह से हमने इसका आंसर देना है. तो देखो CFSE is crystal field splitting energy. When ligand attacked on metal, then degenerated d orbitals are splitted. This splitting is depends on the upcoming ligand's power and orientation, and that splitting energy is called CFSE. यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है?
यानी कि जो कोई लिगैंड आ रहा है उसकी पावर कितनी है, वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और इसके अलावा वो कहां से आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है या अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अगर एक्सिस से आ रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और इन बिटवीन द एक्सिस आ जाएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आने पे भी डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है और कहां से आ रहा है ना। ये क्या होती है अपनी CFSE हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? देखो, पेयरिंग एनर्जी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर करते हैं, है ना, आते हैं, जैसे मान लो ये 3 ऑर्बिटल है ना, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे भर दिया, एक यहाँ पे फिल कर दिया, एक यहाँ पे, और जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया तो ये पेयर हुआ है ना। तो इस पेयर होने के लिए इसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जो पेयर होने के लिए एनर्जी चाहिए उसे ही क्या कह देते हैं? पेयरिंग एनर्जी। नाम से पता चल जाएगा, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, पेयर करना है, उसका पेयरिंग बनानी है, तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो the energy required for electron pairing is in a single orbital। सिंगल ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कह देंगे? पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ CFSE ऑन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, दो एनर्जी जो होगी अपने पास में, एक तो होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक होगी पेयरिंग। दो ही बातें सकती है। हो सकता है कि जब स्पिल्ट हुआ तो वो इतनी ज्यादा स्पिल्टिंग होगी ना कि इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 3 थे, है ना, 3 यहाँ पे फिल हो गए, और जो चौथे को यहाँ पे फिल करना था, है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको यहाँ पे फिल नहीं कर पाए क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा था। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा ही नहीं पाया, तो वो कहाँ पे होगा पेयर? यहीं पे ही पेयर होगा, है ना। तो हो सकता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाए तो पेयरिंग, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी वहां पे? पेयरिंग होगी। लेकिन हो ऐसे भी सकता है कि स्प्लिटिंग थोड़ी सी हुई और पेयरिंग होने के लिए एनर्जी तो ज्यादा चाहिए ही है ना। तो पेयरिंग होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो था, 3 तो यहाँ पे फिल हो गए, फोर्थ को इलेक्ट्रॉन को फिल करना था, वो जंप करके कहाँ चला गया? ऊपर इजिली चला गया। यानी कि ये डिपेंड करता है कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है ना तो पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि वो छलांग लगा के ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, है ना। सॉरी, क्या हो जाएगी? ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं होगी। तो अपना आंसर सिंपल है, ये क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, है ना। अगर ये ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, एंड इफ delta is less than pairing energy, then pairing doesn't takes place. That means if our CFSE is less than pairing energy, then pairing doesn't take place. But if there is CFSE is greater than pairing energy, then always pairing takes place because the upcoming electron required more and more energy to do pairing. That's why to jump on the next orbital, higher orbital. Okay, then पेयरिंग टेक्स प्लेस। क्या होगा कि अगर ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाना है, हायर ऑर्बिटल्स को उन्होंने लेना है इलेक्ट्रॉन ने, तो उसको स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा गैप उसको पार करके जाना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या हो जाएगा? वो पेयरिंग ही कर जाएगा, नीचे वालों के साथ में ही एडजस्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अंबानी तक पहुंचने की तो हिम्मत नहीं है, तो यहीं पे कहीं पे सेट हो जाओ। लेकिन अगर ये कम है तो वो कहाँ बैठेगा? हायर क्लास में जाके बैठेगा ना, कि इतना सा है, इतना सा तो लोन वोन लेके भी चला जाऊंगा, तो अपना स्टेटस तो बढ़ा के रखें। तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे एडजस्ट वो नहीं करेगा, यहाँ पे एडजस्ट उसी केस में करेगा जब ये गैप क्या हो, बहुत ज्यादा, उसको पता हो कि मैं यहाँ तो पहुंच नहीं सकता, तो यहीं पे इन्हीं के साथ में ले दे के काम चला लेता हूं। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, yes, very important question. What is the relation between delta T and delta O? Delta T क्या है? Tetrahedral, splitting energy in tetrahedral, और delta O क्या है? Splitting energy of octahedral. Octahedral का मतलब है जिसमें 6 लिगैंड है, और tetrahedral जिसमें 4 लिगैंड्स है, that is called tetrahedral. तो रिलेशन होता है डेल्टा T इक्वल टू 4/n डेल्टा octahedral. Okay, next, what is the region of color in coordination compounds? What is the region of color? We know that color depends upon the d orbital, d electrons, unpaired electrons. हमें क्या चाहिए होते हैं? unpaired electron चाहिए होते हैं, which obtain energy to go higher orbitals.
हायर ऑर्बिटल्स में जाने के लिए वो एनर्जी लेते हैं, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट देन इट्स रिलीज एनर्जी एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग कलर वी आर एबल टू सी। इसका कोरस्पॉन्डिंग कलर हम देख पाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोल क्या प्ले करते हैं? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ये रोल रह जाता है कि वो क्या करते हैं, जैसे ये स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन गया, ऑर्बिटल नहीं गया, ऑर्बिटल तो यहीं पे है। यहाँ वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, पेयर में होता है ना, देखो कपल्स को आजादी नहीं होती इधर उधर घूमने की, घूमता कौन है? सिंगल, है ना। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और जाते टाइम उसको क्या चाहिए? एनर्जी। अब वहां पे वो स्टेबल नहीं है क्योंकि वो उसका घर नहीं है। घर कहाँ है? यहाँ है। उसका रहन सहन कहाँ है? यहाँ है। तो वो वापस तो आएगा, श्योर है ना। वो यहाँ से जाके कहाँ गया है? यहाँ पे गया और उधार की एनर्जी लेके गया, तो उस एनर्जी को रिलीज करके वापस यहीं पे ही आएगा। आते टाइम वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। अब मन यहाँ भी नहीं लगेगा, वापस से किसी से एनर्जी पकड़ेगा और कहाँ जाएगा? यहाँ। लेकिन यहाँ पे रहने की उसकी औकात नहीं है, फिर से एनर्जी छोड़ेगा और कहाँ आएगा? वापस नीचे। इस तरह से वो लगातार क्या करता रहता है? ऊपर नीचे होता रहता है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन। दैट इज कॉल्ड, अब देखो ट्रांजिशन किसके बिटवीन हो रहा है? डी एंड डी के बिटवीन, दैट इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। समझ में आई बात? एंड दैट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड एनी अदर कंपाउंड। किसी भी चीज का कलर शो हो रहा है ना हमें, उसका रीजन ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, then DD transition is responsible for color of coordination compounds because here D orbitals are vacant and have unpaired single electron which can go to upper class electrons. Okay, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DD transition. Okay, DD transition by unpaired electrons, by unpaired electrons. नहीं भी लिखोगे देन इट्स ओके। क्यों नहीं? क्योंकि ये भी पता है कि डीडी ट्रांजिशन होगा ही तब जब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द CFSE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिगैंड, आने वाला लिगैंड, मैंने पहले भी कह दिया था। द नेचर ऑफ अपकमिंग लिगैंड इफेक्ट्स द स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, आ रहा है जो कितनी पावर का आ रहा है और किस साइड से आ रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ना CFSE को, कि पावर कितनी का। अगर पावर वाला आएगा तो क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा आएगी, है ना। उसका तोड़फोड़ क्या करके जाएगा? ज्यादा करके जाएगा। अगर आने वाला ही कम पावर से आ रहा है तो कितनी तोड़फोड़ कर लेगा? बहुत ज्यादा तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए है ना, आने वाला लिगैंड की नेचर डिपेंड करेगी कि आ कौन रहा है ना। उस हिसाब से वो डी ऑर्बिटल की क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी, और किस साइड से आ रहा है ना। जिस साइड से, साइड तो इफेक्ट करेगी ना। अगर इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो स्प्लिटिंग उस तरह से होगी, अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो क्या होगा? स्प्लिटिंग उस हिसाब से होगी। देन फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिगैंड। सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इफेक्ट करेगी? अब देखो, तुमने पुराने टाइम में सुना होगा, है ना, कि जब बाहर वाले मुगल अटैक करते थे, है ना, जितने भी मतलब कि अफगान की साइड से, पठानों की साइड से अटैक हुआ, तो वो अपने आप तो बहुत कम हुए हैं। ज्यादातर को क्या किया गया? यहाँ के ही किंग थे जो है ना, एम्पीरियर थे, उन्होंने क्या किया था? उनको बुलाया था कि आओ आओ, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है? मेटल ही बुलाता है। अब यहाँ पे अगर बुलाने वाले ज्यादा हो जाते हैं ना, बाहर से अटैक करने वालों को यहाँ वालों ने ज्यादा बुला लिया था, यही वालों ने ही बुलाया था कि भाई हमारी लड़ाई होगी है या हमें जरूरत है, आओ। तो वो आते थे, फिर वो जिसके लिए बुलाते थे उसको तो लूटते ही थे, और जिसने बुलाया होता था उसको भी लगे हाथ साफ कर जाते थे, है ना। तो यही होता है। तो अब यहाँ पे भी क्या होता है कि जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए? अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है कि उसमें क्या हो जाए? प्लस चार्ज ज्यादा हो जाए। प्लस चार्ज ज्यादा हो गया यानी कि खुद के अंदर क्या होगी? कमी। खुद में कमी होगी तभी किसी को बुलाते हैं, है ना। तो खुद के अंदर क्या होगी? उसके अंदर कमी आ गई, कमी आ गई, उसकी प्लस चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। अब प्लस चार्ज ज्यादा है तो लिगैंड के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके कहाँ आएगा? ज्यादा पास में आएगा, और ज्यादा पास में आएगा तो तोड़फोड़ भी ज्यादा होगी। दूर है तो तोड़फोड़ कम है, पास में आया तो तोड़फोड़ ज्यादा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा। थर्ड वन अपना आता है नेचर ऑफ द मेटल आयन।
कि जो अपना मेटल आयन है ना, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये क्या है, नेचर। नेचर का मतलब है कि वो 5d से है, 4d से है या 3d से है। तो देखो CFSC किसकी ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन, देखो जहां पे लड़ाई ज्यादा पहले हो जाएगी CFSC वहां पे ही ज्यादा हो जाएगी। मान लो 3d है तो 3d ऑर्बिटल तो यहीं रह गया ना, लिगैंड आ रहा था यहाँ पे आया और यहीं से ही गोला बारूद शुरू हो गया, तो इसकी स्पेल्टिंग क्या हुई, कम हुई। लेकिन ये तो खड़ा ही बॉर्डर पे था, है ना, 5d तो बॉर्डर पे खड़ा था, यहाँ से आया और यहीं पे ही तोड़फोड़ चालू होगी, तो स्पेल्टिंग कहाँ पे ज्यादा हुई, बॉर्डर पे, है ना। जैसे अब लड़ाई लगती है तो अपन को तो कईयों को तो होश भी नहीं होता कि हाँ लड़ाई भी लगी और वहां पे बॉर्डर पे तो तहस नहस हो चुके होते हैं। सेम ये यहीं पे ही होता है, 3d अंदर का है, 4d उसके बाहर और 5d बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो स्प्लिटिंग कहाँ पे ज्यादा होगी, 5d पे सबसे ज्यादा, 4d पे उससे कम और 3d पे सबसे कम स्प्लिटिंग हुई है। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, हाउ वी कैन स्प्लिट d ऑर्बिटल्स फॉर octahedral एंड tetrahedral कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैसे भी पूछ ले वो, है ना, कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है उसके अंदर स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। जो ये 10 क्वेश्चंस दिए हैं ये मोस्टली पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम चांस है इस बार के एग्जाम में आने के, है ना। तो देखो किस तरह से होती है कि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है कि देखो T2G इन बिटवीन द एक्सिस एंड EG अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस से आते हैं, एक्सिस से आएंगे तो उनकी एनर्जी रिपल्शन क्या हो गया, ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा हो गया तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। समझ में आई बात। तो EG वालों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी और T2G की कम होगी। और टेट्राहेड्रल के कहां से आएंगे, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो इन बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, तो T2G की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा और EG की क्या होगी, कम। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सेम ऐसे के ऐसे ही बना के आना है, इधर लिखोगे ऑक्टाहेड्रल, इधर लिखोगे टेट्राहेड्रल, है ना, इसमें T2G नीचे और EG ऊपर, इसमें EG नीचे और T2G ऊपर, और ये डेल्टा T लगा दोगे, इसमें डेल्टा O लगा दोगे। देखो जो 3 है ना वो 4 है, 0.4, और जो 2 है ना वो 0.6 है, क्योंकि देखो 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो ऐसे याद भी रख सकते हो आप कि जो 3 है वो तो 0.4 है, कि 0.4 0.4 0.4 1.2 हो गया, और ऐसे 0.6 और 0.6 कितना हो गया, 1.2 हो गया, बराबर हो गया ना एनर्जी। तो इसलिए ये तो है 0.4, ये नीचे है, नीचे वाले के लिए माइनस लगा देना, ऊपर वाले के लिए प्लस लगा देना। सेम ऐसे ही इसके अंदर किया, EG नीचे है तो देखो माइनस, तो वैल्यू कितनी होगी 0.6, तो कितना हो गया 0.6 माइनस का होगा क्योंकि ये नीचे है, T2G कहाँ है, ऊपर है, तो किसका हो गया, प्लस का 0.4। तो ये थे आप आज के अपने 10 क्वेश्चंस, and in next class I will take examples like coordination compounds, explain the flowing coordination compounds on the basis of CFT। उसके मैं आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चंस लूंगी, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए 10 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।